Assalamualaikum students, welcome to online support program by AppSax Fortod. This is week 2 and we are going to discuss chapter number 1, which is programming techniques. Many of students were saying that they don't have the book for class 10th, so I have also uploaded the book onto my Google account, and the link to that account is given into the description of this video. So after watching this video, click on the link given in the video description and download the book in soft form. So let's start our today's agenda. In this video, you will learn about algorithm in computer programming and the importance of algorithm in computer programming, and you will be able to measure the efficiency of an algorithm. You will be able to compare 2-3 different algorithms and you will be able to find out which one is the best and why. Before we start our today's agenda, let's discuss what we have done in previous video lecture. In previous video lecture, we discussed different steps involved in problem solving on computer, and those were almost 5 steps. The first one, defining the problem. This was the initial stage of problem solving, and before we start working on solution, we must define our problem. And how we can define the problem? Read the problem again and again, and what type of information can be obtained from the problems, and many other aspects were there to define the problem. The second one was analyzing the problem. You have defined your problem. Now it's time to investigate the problem. Collect the information as much as you can about your problem. Discuss your problem with some concerned person, some other peoples, and discuss how many solutions are possible, which one is the best solution and why, and many other things. The third one was planning the solution of the problem. It was the creative stage of problem solving. In this stage, there were many different points, like talk to the right person. The second one was, while talking to the right person, stay focused on your agenda. Do not talk about irrelevant things which are not concerned to your problem. And obviously when you are talking to that person, you must expect different types of questions and stay calm during the conversation and many other things. The fourth point is candidate solution. Like every problem has multiple solutions, and all those possible solutions that can solve the problems are known as candidate solution. And then the last one, best solution, selection of best solution among the candidate solution. So there are basic 3 factors on the behalf we select the best solution, and those factors were the speed, cost, and the last one was complexity. So these were the steps involved in problem solving on computer. Now let's move to our today's agenda, which is algorithm and its importance. What is an algorithm and why it is important in computer programming? Algorithm plays an important role in computer programming. How? Because it is method, procedure, technique or plan to solve some problem. Whenever we face some problem, we make some plans to solve that problem. We follow some techniques, we follow some procedures, we apply different types of methods to solve that particular problem. So in computer programming, algorithm is that method. Algorithm will give you that procedure. Alright, and algorithm is known as the plan of the solution to that problem. The next one is, it is the first step of developing a computer program. Whenever you are going to write a computer program, it means the first step to develop, to write, to code that program is to develop, to write its algorithm. And when you write the algorithm, then you can
code it according to the algorithm. So basically the first step of writing a computer program is to write its algorithm, and then we take algorithm and code it accordingly. Problem is solved step by step in sequence. In algorithm we describe the steps of solution of the problems in sequence, which is easy to understand and to follow the next step. Next thing is, it also describes the sequence of operations to be performed, which sequence has higher priority and at which step we must apply that operation. The next one is measuring the efficiency of an algorithm. How efficient our algorithm is, how we can measure that. Basically, what is efficiency of an algorithm? It is a property, which means it is a feature which relate the algorithm to the amount of computational resources used in it. Computational resources like time, memory and storage. Time, memory and storage. Like the algorithm you have written, how much time is required to run that algorithm, how much memory that algorithm is going to consume when you are running that algorithm, and how much storage capacity it will occupy when you store that run that particular algorithm. And algorithm must be analyzed to determine its resource usage. Like whenever you are going to write that algorithm, you will analyze how much resource computational resources it is going to occupy, like how much time is required to run that algorithm, how much memory it is going to occupy, and how much storage capacity is required for that particular algorithm. Analyzing the algorithm means comparing efficiency using different methods of solution. Like we already discussed that every problem has multiple solutions, but we will select the best solution on some basis. There were three factors. Same is the case whenever you are going to measure the efficiency of your algorithm, you have three factors again: the time, the memory and the storage capacity. So same is the case here. It is saying that analyze the algorithm means compare the efficiency using different methods. Like you will write different algorithms for the same problem, and then you will compare the computational resources of all those algorithms, that which algorithm is taking less time to run that software, which algorithm is occupying less memory, and which algorithm is occupying less storage capacity, and then you will select the best algorithm for your problem. And for the maximum efficiency, whenever we are going to write a program, we want it to best performance. So for the maximum efficiency of the algorithm, we wish to minimize the resource usage. We want that particular algorithm uses minimum computational resources. How fast a problem can be solved depends upon the efficient algorithm. आपका algorithm जितना ज़्यादा efficient होगा, वो उतनी ही जल्दी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो उतनी ही कम आपकी मेमोरी जो है उसको कंज्यूम करेगा. ये ना हो कि आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, वो रन होने में तो टाइम 2 सेकंड में वो रन हो जाता है, ओपन हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो इतनी ज़्यादा रैम कंज्यूम कर लेता है कि बाकी उस वक्त में आप जो है वो बाकी प्रोग्राम्स आपके रन नहीं हो पाते. हम कंप्यूटर के अंदर एक ही वक्त में 5 से 6 सॉफ्टवेयर पैरेलल रन कर रहे होते हैं. तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कितना फास्ट है, ये डिपेंड करता है कि वो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. सो आवर फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स. ठीक है, आपको 5 नंबर्स दिए जाएं तो आपने उनका सम फाइंड करना है, उनको प्लस करना है, मीन प्रोडक्ट फाइंड करना है, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उनकी एवरेज. एवरेज क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर्स. ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एवरेज ऑफ नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा?
What are the inputs required? The inputs are required, we need 5 numbers, because the question says find the sum, average and product of 5 given numbers. So 5 numbers are used as an input into our problem. जब तक आपके पास 5 numbers नहीं होंगे, आप ना प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ना सम फाइंड आउट कर सकते हो, और ना ही एवरेज कर सकते हो. सेकंड स्टेप, व्हाट इज द आउटपुट? आपको अब आउटपुट क्या रिक्वायर्ड है? 5 नंबर आपको दे दिए गए हैं. आउटपुट में you need to describe, you need to display the sum of those 5 numbers, product of those 5 numbers and average of those 5 numbers. And the third step is in planning solution process. Process क्या है? Obviously for sum you need addition. आप पता होना चाहिए addition कैसे की जाती है, उसका फार्मूला क्या है. For product you must know how to multiply those numbers. आपको मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आना चाहिए. एंड एवरेज के लिए ऑब्वियसली एवरेज के लिए आपको टोटल नंबर्स का सम करके उनको टोटल नंबर के ऊपर डिवाइड किया जाता है. दिस इज कॉल्ड डिवीजन. सो दिस वाज द प्लानिंग ऑफ सेशन. लेट्स मूव टू द एल्गोरिथम. फर्स्ट स्टेप, स्टार्ट में क्या करते हैं, जैसे हमने पहले कहा था कि आप इनपुट में लिखेंगे तो हम यहाँ पे लेट 5 नंबर्स, हम 5 नंबर्स को यहाँ पे सपोज कर रहे हैं. लेट 5 नंबर्स ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास 5 नंबर्स हैं. ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास लेट्स सपोज 5 नंबर्स हैं. स्टेप 2 पे हम क्या करना है, हमें प्रोसेसिंग करनी है. ऑब्वियसली हमें प्रोसेसिंग में क्या चाहिए था, हमें सम फाइंड आउट करना था, प्रोडक्ट करना था और मल्टीप्लाई करना था. तो हम पहले क्या कर रहे हैं, फाइंड सम. तो उसके लिए हमने सम के लिए एक सम का वेरिएबल बनाया है और आगे से हमने क्या करिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई. मैंने फार्मूला लिख दिया, उसमें इसको सारे को सेव करवा रहा हूँ. इस सारे के सारे एक्सप्रेशन को मैं सेव करवा रहा हूँ एक सम के अंदर. मैंने एक सम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, ये एक वर्ड लिख दिया. ठीक है, मतलब ये सारा सम जो है जमा होके इसके अंदर एड अप हो जाएगा. सेकंड थिंग, फाइंड प्रोडक्ट. उसके लिए मैंने एक वेरिएबल नया डिक्लेयर किया है. मैंने सपोज किया प्रोडक्ट के लिए मैं प्रोड का वर्ड यूज कर रहा हूँ PROD, और उसके लिए मैंने आगे फार्मूला लिख दिया है A मल्टीप्लाई बाई B मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई D मल्टीप्लाई E. मैंने यहाँ पे स्टैटिक का सिंबल यूज किया. स्टैटिक सिंबल यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू राइट मल्टीप्लिकेशन सिंबल यू विल प्रेस स्टैटिक की. The third thing is find the average. Average is equal to AVG. मैंने उसके लिए एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है. AVG is equal to sum divided by 5. sum क्या आ गया, sum is equal to A plus B plus C plus D plus E. ये सारे के सारे इसमें सेव हो गया है. और ये आ गया हमारे पास टोटल हमारे पास नंबर्स आ गए. कितने नंबर हैं, 5 नंबर से 1 2 3 4 5. तो हम सम को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनका एवरेज आ जाएगा. ठीक है जी. अब हमने सम भी फाइंड कर लिया है, प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया है और एवरेज भी फाइंड कर लिया है. जब इनके अंदर वैल्यूज आएंगी, ए की वैल्यू बी सी और डी की वैल्यू आएगी तो सम भी फाइंड आउट हो जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोडक्ट में सेव हो जाएगी. सेम इज द केस, एवरेज की वैल्यू एवीजी के वेरिएबल में सेव हो जाएगी. लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने अब आउटपुट शो करनी है. आउटकम किस में शो करवा रहे हैं, ऑब्वियसली हमारे पास जो सम है वो सम के वेरिएबल में सेव हो रहा है. प्रोडक्ट जो हमने किया है वो हमने किस में सेव करवाई है, PROD के अंदर. और जो एवरेज है वो हम सेव करवा रहे हैं AVG के अंदर. तो हम यहाँ पे आउटपुट में हमने उस वेरिएबल्स के नाम लिख दिए हैं जिनमें हमने अपने प्रोसेसर के अंदर फार्मूलाज को सेव करवाया था, सम प्रोड एंड एवरेज. और यही हमारे पास जो था गिवन था कि आप 5 दिए हुए नंबर्स के सम प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड आउट करें. और स्टेप 4 में क्या आ जाएगा, स्टॉप. आपका एकदम सम प्रोडक्ट और एवरेज शो कर क्या हो जाना चाहिए, स्टॉप हो जाना चाहिए. ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड प्रॉब्लम. तो मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारे पास एल्गोरिथम सेम है पहले हम उनको आपस में क्या कर लें, डिस्कस कर लें, सॉल्व कर लें. तो इसलिए मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 को फिलहाल छोड़ दिया. मैं डायरेक्ट आ गया प्रॉब्लम नंबर 3 के ऊपर, बिकॉज प्रॉब्लम नंबर 1 and 3 बोथ आर सेम, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. सो द प्रॉब्लम नंबर 3 इज फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड द फोर्स अप्लाइड. अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है जस्ट एक्सेलरेशन. ठीक है, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होंगी. इनपुट के तौर पे हमने क्या देना है, इनपुट में वो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड द फोर्स. ऑब्वियसली मास एंड फोर्स अगर हमें पता हो तो हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आप लोगों ने साइंस के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, फिजिक्स के अंदर आप लोग ये पढ़ रहे होंगे. सो प्लानिंग ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या आएगा, इनपुट्स में क्या आएगा, इनपुट में हमारे पास आ गया मास एंड फोर्स. इनके लिए आप वेरिएबल बनाना चाहे तो बना सकते हैं. आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में हमें उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है. और प्रोसेस में हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है डिवाइड किया जाता है. आपने जब भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होता है तो आप फोर्स को मास के ऊपर डिवाइड कर देते तो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो
आ जाता है। ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस के अंदर। सो लेट्स मूव टू द एल्गोरिथम। स्टेप 1 के अंदर ऑब्वियसली अगेन स्टार्ट आएगा, हमेशा पहला और आखिरी स्टेप, पहला स्टेप स्टार्ट होगा और आखिरी स्टेप स्टॉप होगा, ठीक है जी। स्टार्ट आ गया, अब स्टार्ट हमने क्या करना है, इनपुट के अंदर करना है। तो इनपुट में क्या करूँ, लेट फोर्स, फोर्स के लिए मैंने एक एफ का वेरिएबल क्रिएट किया है एंड मैस, मैस के लिए एम का वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। सो द सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग में क्या करना है हमने, फाइंड एक्सेलरेशन। अब मैंने एक्सेलरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक ACC के नाम से वेरिएबल बनाया है। ACC इज इक्वल टू एफ और एम, ये बेसिकली मैंने फार्मूला लिख दिया है एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने का। एफ डिनोट्स, एफ रिलेट्स फोर्स और एम रिलेट्स मैस, ठीक है जी। आपके पास फार्मूला हो गया है। तो ऑब्वियसली जब इसके अंदर एफ और एम की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन का आंसर आ जाएगा। जब आंसर आ गया है तो अब हमारे पास क्या है, हमने उसको स्टेप 3 के अंदर आउटपुट शो कर देनी है। और आउटपुट हमारे पास किस में सेव हो रही है, ACC वेरिएबल के अंदर हमारे पास आउटपुट शो हो रही है। एक्सेलरेशन जो है उसके लिए हमने ACC का वेरिएबल बनाया था, तो मैं यहाँ पे आउटपुट के अंदर ACC एक्सेलरेशन शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके लिए हम आउटपुट करेंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आएगा, स्टॉप आ जाएगा। आपका ये जो प्रॉब्लम 3 है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। ये भी हमारे पास प्रॉब्लम 1 एंड 3 की तरह सेम है। आपने जस्ट इनपुट लेनी है, फार्मूला पुट करना है और फिर उस फार्मूले का आप लोगों ने आगे से आउटपुट दे दिया और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट प्लानिंग द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है हमारे पास, इक्वल होती हैं। ओके, इनपुट में आप क्या देना है, आपने लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब आपने यहाँ पे इंटर करनी है, ठीक है जी। आपके पास क्योंकि सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है तीनों साइड्स की, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब आ जाएगी। आउटपुट आप क्या करना है, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस में क्या आ जाएगा, या तो आपने जो वो लेंथ है उसको आप पावर 3 ले लें, ठीक है, तो वो भी क्यूब बन जाएगा, या आप उसको क्या कर लें, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, आप उस लेंथ को 3 दफा मल्टीप्लाई कर लें तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। सो लेट्स मूव टू द एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप अगेन स्टार्ट, उस पर हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब ए। मैंने लेंथ ऑफ साइड ऑफ द क्यूब के लिए कौन सा वेरिएबल लिया, यहाँ पे मैंने ए को यहाँ पे यूज कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। सेकंड थिंग मैं क्या करूंगा, प्रोसेसिंग मीन यहाँ पे मैं अपना फॉर्मूला पुट करूंगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है VOL और आगे मैं क्या करवा रहा हूँ, A मल्टीप्लाई A। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो, मैंने वर्ड यूज किया, आप कोई और यूज कर लो, ठीक है। मैंने A यूज किया, आप A जगह कुछ भी यूज कर सकते हो, X कर सकते हो, Y कर सकते हो, आप बेसिक लेंथ ही लिख लो, इटसेल्फ पूरे पूरा वर्ड लिख लो, लेंथ इंटू लेंथ एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फार्मूला कैलकुलेट होकर सेव हो जाएगा वॉल के अंदर। अगला स्टेप क्या है, स्टेप 3 आउटपुट। हमारी अब आउटपुट बताएं मुझे कहां पे सेव है जी, हमारी आउटपुट जो है वो सेव हमारे पास है VOL के अंदर। ये हमारे पास वेरिएबल है VOL, तो ये हमारे पास क्या कर देगा, इस जो एक्सप्रेशन है इसको आपस में सॉल्व करके इसके अंदर आंसर सेव कराएगा और यहाँ पे हम आउटपुट के अंदर आउटपुट को शो कर रहे हैं। स्टेप 4 के अंदर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है जी। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन बेस एंड हाइट आर गिवन। आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है और आपको उसके लिए गिवन क्या क्या चीजें होंगी, ऑब्वियसली आपको उस ट्राइंगल की बेस गिवन होगी, ठीक है, और आप उसको उस ट्राइंगल की हाइट गिवन होगी। आपके पास फार्मूला का आपको पता होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का, तो आप इसको बड़ी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग ऑफ सॉल्यूशन में क्या आएगा, हम सबसे पहले इनपुट्स लिखते हैं। तो इनपुट्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट्स में हमारे पास आ जाएगा हाइट और बेस, हाइट ऑफ ट्राइंगल एंड बेस ऑफ ट्राइंगल। सेकंड थिंग, हमने आउटपुट में क्या शो करना है, एरिया शो करना है, ठीक है, एरिया आ जाएगा। प्रोसेसिंग क्या है, ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, ठीक है जी। लेट्स मूव टू द एल्गोरिथम। स्टेप 1 स्टार्ट, लेट्स डिस्क्राइब द वेरिएबल्स नेम्स। लेट लेंथ, लेंथ को मैं डिनोट कर रहा हूँ, लेंथ के लिए मैं यूज कर रहा हूँ A का वर्ड लेटर यूज कर रहा हूँ और बेस को मैं यूज कर रहा हूँ B में यूज कर रहा हूँ बेस के लिए, ठीक है जी। स्टेप 2 का नाम आपका आ जाएगा प्रोसेसिंग, यहाँ पे आप फार्मूला लिख देंगे। तो फार्मूले में क्या आ जाएगा,
फाइंड एरिया फाइंड करना है तो मैंने उसके लिए एरिया का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैं सेव करा रहा हूँ a मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाय 2, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बेस डिवाइडेड बाय 2। ये जब एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो ये आंसर सेव हो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे और ये दोनों चीजें सेम है तो इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो अब जब मैंने अब प्रोसेसिंग हो गई है और नेक्स्ट स्टेप इज आउटपुट शो करनी है, तो अब आउटपुट हमारे पास ये वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एरिया, आउटपुट हो जाएगी। जब आउटपुट होगी तो हमारा एकदम क्या हो गया, सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, यहाँ पे हमने स्टॉप कर लिया। ओके, इट्स टाइम फॉर योर वर्क टू डू। आपने क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 12 आपकी बुक के अंदर प्रॉब्लम नंबर 12 गिवन है, जिसका टेक्स्ट ये है, कन्वर्ट गिवन टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपको टेम्परेचर दिया जाएगा फ़ारेनहाइट में, आपने उसको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करना है। इनपुट में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट आ जाएगा, आउटपुट में क्या आप शो करोगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस, और प्रोसेस में फार्मूला आ जाएगा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या है, वो आपकी बुक में भी गिवन है, वरना आप नेट से भी सर्च कर लीजिएगा, ठीक है जी। सेकंड थिंग है, आपने डिस्क्राइब करना है द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कि इसका पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अपनी वर्डिंग में, ठीक है। मेरा भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपने खुद से उस टॉपिक को रीड आउट करना है और आपने अपनी वर्डिंग के अंदर उसको लिखना है पॉइंट्स बना के। फिर हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, आप लोगों ने उसको रीड आउट कर लेना है और उसको भी सॉल्व करना है लूज शीट्स के ऊपर, ठीक है। सेम में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने, तो मैंने यहाँ पे हिंट आपको दे दिया है। 1 इंच कंटेन्स 2.54 सेंटीमीटर्स, 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर्स हुआ करते हैं। आप आसानी के साथ सेंटीमीटर्स इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड वंस अगेन मैं बता रहा हूँ कि आई हैव अटैच्ड द लिंक ऑफ योर बुक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। आप वहाँ से वीडियो के उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी 10th क्लास की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस के साथ अपडेट किया जा सके। हैव अ गुड डे, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।